Hi everyone. So we are starting with second class of reading number 19. Reading number 19 जो अपने last class start किए थे, we discussed about the equity valuation application in process, and in that two LOS are pending, which is LOS number D and E. As you can see, LOS number D is about applications of equity valuations. जो valuation अपने सीख रहे हैं, how we can apply that valuation. LOS number E is about describe the questions that should be addressed in conducting an industry and competitive analysis. So let's quickly start with LOS number D, applications of equity valuation. Equity valuation जो भी अपने valuation कर रहे हैं उसको कैसे apply करेंगे. So before we start, let us first remember the definition of valuation. So valuation is the process to determine the value of any asset based on the company का fundamentals. कंपनी का फंडामेंटल्स को समझते हुए you have to decide or you have to conduct the valuation process. Right, for the valuation process you may forecast the company का cash flows, future estimated cash flows. जब तुम future estimated cash flows determine किया या assume किया, then you have to discount it at the required rate of return. उसको अपने बोलते हैं absolute valuation model. Whereas in case of a company where they are having a peer competitors are available, similar companies are available, you can conduct what? Relative valuation of that company. Right. So before you start any valuation exercise, what are the different steps that as the analyst you need to conduct. कोई भी कंपनी का वैल्यू करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा. क्या परफॉर्मेंस, क्या स्टेप्स रहेगा? फर्स्ट विल बी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी. आपको सबसे पहला कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉरकास्ट कंपनी का फाइनेंशियल्स. यू हैव टू फॉरकास्ट कंपनी का फाइनेंशियल्स को आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा. थर्ड, you have to choose the valuation model based on the characteristics of the company. Fourth, you have to incorporate company का financials into that valuation model. And last, you have to conclude. I think थोड़ा सा fast हो गया होगा. ये जो सारा steps है, let me take an example and let me re-explain this. सबसे पहला क्या बोला? अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी. कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. क्यों अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? आप सोचो एक बार. यू आर कंडक्टिंग अ वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी. अब वैल्यूएशन कर रहे हो कंपनी का, राइट? वैल्यूएशन आप कैसे कर सकते हो? यू आर टेकिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी एंड जस्ट बेसिस ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड, डू यू थिंक इट इज अप्रोप्रिएट टू टेक ओनली द हिस्टोरिकल ट्रेंड और हिस्टोरिकल एवरेज को देखते हुए यू फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर? मे नॉट बी. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. अब उनका बिजनेस तो समझो. फॉर एग्जाम्पल डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट जिसका नाम है, राइट? एवेन्यू सुपर मार्ट का अगर आपको बोला जाए दैट यू हैव टू कंडक्ट द फाइनेंशियल मॉडलिंग और यू हैव टू डू द valuation of that company, तो what steps you will perform? First we need to understand from the annual report कि कंपनी करता क्या है. What is the business model of that company? As you are aware कि डीमार्ट का business model है क्या वैसे? They are into basically foods, non-foods में personal care products and all. Then you have general merchandise, apparels and all. So they are into those segment. So first you have to conduct an analysis how these segments are going to perform in next 4 years or 5 years, because you will be forecasting the cash flows of this company based on the industry trends. So it's important. First you need to understand the business of that company. Second, you have to forecast the company का financials, बिकॉज आपके पास करंट ईयर का डेटा है. करंट ईयर का डेटा देखते हुए, इंडस्ट्री का फोरकास्ट लेते हुए, प्लस कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हुए, देन एडिंग मिक्सिंग अप दिस डेटा, then you will have to forecast the company का financials for next say 4 years 5 years का you are doing the forecasting. Third, basis on the company का characteristics you are choosing the valuation model. वैल्यूएशन मॉडल कौन सा आप चूज करोगे? एब्सोल्यूट चूज करोगे, रिलेटिव वैल्यूएशन चूज करोगे? डिपेंड करता है कौन सा टाइप का इनपुट है आपके पास. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, you have an availability of that, whether the company is paying a dividend, whether the company is not paying a dividend. Depending on that you will choose the DDM method or FCF method. कि अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है तो सर आई विल गो फॉर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. इफ कंपनी इज नॉट पेइंग द डिविडेंड तो अपने फ्री कैश फ्लो मॉडल चूज करेंगे. डोंट वरी, ये सब सारा चीज अगेन नेक्स्ट वाला चैप्टर्स के अंदर में डिस्कस किया हुआ है. कब DDM यूज करना है, कब FCF यूज करना है. यहाँ पर समझाने के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल कि इफ द कंपनी इज पेइंग द डिविडेंड आई मे select to choose DDM approach. If the company is not paying the dividend, I may choose to follow what? Free cash flow model. Or if cash flows का visibility नहीं है, what I can do? I can also conduct the relative valuation of that company. You are basically comparing that company with its peers based on the price multiples. So एक बार आपका valuation model final हो गया. थर्ड स्टेप में finally you will have to incorporate जो कंपनी का हमने forecast किया था financials, you have to incorporate into the valuation model.
और एक बार आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, यू विल हैव टू रन दैट वैल्यूएशन मॉडल एंड देन इट विल थ्रो यू व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू. Once we get the intrinsic value, then we'll have to what just conclude whether we want to buy, sell or hold, whatever is the recommendation comparing the price and the intrinsic value. So these are the different steps that as the analyst you have to perform before you conduct the valuation or before determining the intrinsic value of any company, right? Now discussing about the applications of equity valuation means where you can actually use the equity valuations. कहाँ पे आप use कर सकते हो equity valuations का? सबसे पहला, first you need to conduct an analysis about the stock. स्टॉक के एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हो, और ऑल्सो नोन एज स्टॉक सिलेक्शन के लिए कि स्टॉक को बाई करे, सेल करे या होल्ड करे. मीन्स एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग द प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू, कंपेयरिंग द करंट मार्केट प्राइस एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू और शुड बी प्राइस ऑफ द एसेट. ये दोनों चीज को मेरे को कंपेयर करना है ताकि मैं स्टॉक सिलेक्ट कर पाऊं, बाई करूं, सेल करूं या होल्ड करूं. सेकेंड, इट कैन बी रीडिंग द मार्केट. मार्केट को आप रीड करो. व्हेन वी से मार्केट को रीड करने का मतलब क्या हुआ सर? मार्केट को रीड करने का मतलब यू आर एक्चुअली रीडिंग द प्राइस ऑफ दैट एसेट और दैट स्टॉक. आप प्राइस चेक कर रहे हो. प्राइस को इन्फर करते हुए यू कैन ऑल्सो चेक द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी. सर मतलब नहीं समझ में आया. मतलब कि प्राइस अगर मेरे को दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गॉर्डन ग्रोथ मॉडल सोचो कि प्राइस मेरे को दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, रिक्वायर्ड रिटर्न, माई रिक्वायर्ड रिटर्न आई नो, I can calculate the growth rate because if we know Gordon growth का formula P0 is equal to D1 divided by RE minus D और IV0 is equal to D1 divided by RE minus D. तो मैंने बोला सर मेरे को P0 पता. सर P0 कैसे पता? मार्केट पे ट्रेड कर रहा है. D1 कैसे पता? आज आपको पता है डिविडेंड कंपनी ने कितना पे किया, नेक्स्ट ईयर में कितना डिविडेंड पे कर सकता है. रिक्वायर्ड रिटर्न मेरे को मेरा पता, आई कैन इन्फर द ग्रोथ रेट, आई कैन इन्फर द अर्निंग्स ग्रोथ रेट कि हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हुए क्या ग्रोथ रेट रहा है अर्निंग्स का. यू कैन फोकस अबाउट द फ्यूचर. सो यू कैन एक्चुअली रीड द मार्केट वाया वैल्यूएशन एक्सरसाइज. नेक्स्ट, यू कैन एक्चुअली परफॉर्म द प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन. प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन लाइक फॉर एग्जाम्पल बोट कंपनी, बोट का वैल्यूएशन यू कैन डू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज राइट बाय कंडक्टिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन अगर कोई कंपेरेबल कंपनी उस स्पेस में है तो, राइट. तो प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन आप कर सकते हो. मतलब यू कैन अप्लाई द वैल्यूएशन मॉडल और वैल्यूएशन मेथड इन द प्राइवेट कंपनी वैल्यूएशन. नेक्स्ट, यू कैन कम्युनिकेट द वैल्यूएशन प्राइस विद द एनालिस्ट एंड विद द इन्वेस्टर्स. आप सोचो यू आर इन मैनेजमेंट, राइट, यू आर डिस्कसिंग और यू आर हैविंग अ कॉन कॉल विद द इन्वेस्टर्स और विद द एनालिस्ट. सो यू नीड अ बेसिस, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन प्राइस होना चाहिए जहां पे आप लोग सब कोई अग्री करो या डिस्कस करो. तो दैट कॉमन प्राइस can be what? Intrinsic value or can be the should be value for the company. So it can be used for the communication between the analyst, between the investors and between the management. Also, valuation can be used in case of LBO. LBO क्या था? Leveraged buyout. LBO level 1 में सुना होगा ऑल्टाई के अंदर में. Leveraged buyout के अंदर में अपने यूज कर सकते हैं. Recapitalization के लिए यूज कर सकते हैं वैल्यूएशन. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए यूज कर सकते हैं वैल्यूएशंस, क्योंकि इफ कंपनी इज प्लानिंग फॉर सर्टेन मर्जर्स और सर्टेन एक्विजिशंस, सो ऑब्वियसली दे वांट टू कैरी ऑन व्हाट द वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी. वो लोग क्या करेगा? वैल्यूएशन कंडक्ट करेगा फॉर दैट कंपनी. तो यहाँ भी अपने यूज कर सकते हैं वैल्यूएशन का. ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड टू पुट अ फेयरनेस ऑफ द ओपिनियन. मतलब फेयरनेस ऑफ द ओपिनियन, फॉर एग्जाम्पल minority interest where the buyer is actually taking a minority interest in some company. तो वो जो प्राइस, किस प्राइस पे एक्चुअली बाई करेगा टू सपोर्ट देयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड और दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट? इक्विटी वैल्यूएशन. इक्विटी वैल्यूएशन कंडक्ट करके जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो स्टेक ले रहे हैं कंपनी के अंदर में, थ्रू दैट दे विल बी एबल टू नो वट एवर इज द प्राइस, किस प्राइस में उनको मिल सकता है. Finally, we can also use equity valuation in case of portfolio management. किसके लिए? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. बिकॉज आज तक हमेशा अपने पढ़ते थे कि वैल्यूएशन वी आर डूइंग फॉर अ सिंगल स्टॉक, बट वी कैन ऑल्सो डू इन केस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स. एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स के लिए वी आर डूइंग द वैल्यूएशन. अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एज वी अवेयर, देयर आर 3 स्टेप्स एज पर लेवल 1 का नॉलेज: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक. प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फीडबैक. फीडबैक को एक बार अपने साइड असाइड कर दे. तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का अगर मैं डिस्कस करूं यहाँ पे, प्लानिंग स्टेज में इफ यू रिमेंबर देयर वर सर्टेन पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ
ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स, रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव, कॉन्स्टेंट्स क्या होता था, TTLLU, टैक्स कॉन्स्टेंट, टाइम होराइजन, लिक्विडिटी, देन यूनिकनेस, RRTTLLU, रिमेंबर RRTTLLU। तो यहाँ भी आपका प्लानिंग स्टेज के अंदर में वी नीड टू कंडक्ट दी RRTTLLU बिफोर यू आर डूइंग दी बेसिकली मैनेजिंग दी पोर्टफोलियो ऑफ एनी क्लाइंट। तो सर यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे काम आता है, बिकॉज इफ यू आर मैनेजिंग दी पोर्टफोलियो ऑफ अ क्लाइंट तो यू हैव एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए यू नीड टू फाइंड आउट the actually intrinsic value of those stock, because accordingly you will take a call whether you want to buy or sell or hold the stocks in the client portfolio. Also in case of active portfolio management, किसमें, in case of active portfolio management उनका जो टारगेट रहता है, their target is to beat the benchmark, जो benchmark है उसका टारगेट क्या रहता है, they want to beat the benchmark to basically get the supernormal profit प्लानिंग स्टेज के अंदर में। देन वी हैव फाइनली एग्जीक्यूशन, जब प्लानिंग कर लिया तो एग्जीक्यूशन में क्या करना है, फाइनली यू हैव टू टेक द ट्रेड। प्लानिंग में यू एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट विच स्टॉक यू वांट टू बाई सेल और होल्ड, बट एग्जीक्यूशन में यू एक्चुअली डू द ट्रेडिंग, बेसिकली यू एग्जीक्यूट द ट्रेड फाइनली, whether you want to buy that stock or whether you want to avoid that stock. So these were the practical applications of the equity valuation. Now, so LOSD was describe the applications of equity valuations. So that we have discussed. LOS number E is about describe questions that should be addressed in conducting an industry and competitive analysis. Means what are the questions that we need to address as the analyst in conducting the industry and competitive analysis. The best part is half of this LOS is we have covered in level 1 के अंदर में इक्विटी में अपना एक चैप्टर होता था इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, वेयर वी यूज्ड टू हैव पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, रिमेंबर 5 फोर्सेस मॉडल। कोई भी कंपनी का आप रिसर्च कर रहे हो तो अपने बोलते हैं सबसे पहला टॉप्स डाउन अप्रोच, सबसे पहला यू नीड टू कंडक्ट द एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, देन यू कैन कंडक्ट द एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं तो इन केस ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, व्हाट आर दी 5 फोर्सेस, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, ट्राई करो रिकलेक्ट करने का एक बार। सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि बाहर से कोई नया कंपटीशन नहीं आ जाए, कॉम्पिटिटर नहीं आ जाए, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। देन राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, कहीं एग्जिस्टिंग फर्म आपस में कहीं लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं टू टेक देयर शेयर, rivalry among the existing firm. Buying power of bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers. All these factors what we want, lower the better or higher the better. याद करने का ट्राई करो एक बार। सबसे पहले क्या बोला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सर कोई बाहर से कोई नया पार्टी आ जाएगा, नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, नया सब्सटीट्यूट आ जाएगा प्रोडक्ट का, नया सब्सटीट्यूट आ जाएगा प्रोडक्ट का, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, मतलब थिंकिंग फ्रॉम द इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू। राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फर्म, आपस में सब कोई लड़ाई कर रहा है टू टेक देयर शेयर। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बायर्स बहुत सारा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, अगर सप्लायर बहुत सारा है तो बहुत बढ़िया, बायर बहुत सारा है बहुत बढ़िया, बट मैंने बोला क्या, अगर ये सब सारा लोअर है तो सर ऑब्वियसली इट इज बैड, अगर ऑल दिस फैक्टर्स अगर लोअर है तो ऑब्वियसली सर इट इज bad. Obviously, to manage the strategy, we want to focus on the cost leadership strategy. Second is the product differentiation strategy. तो अगर अपने को सक्सेस करना है into the industry और into the business, we need to focus कि अपना जो प्रोडक्ट है वो कम से कम कॉस्ट में बने, कॉस्ट लीडरशिप कम से कम कॉस्ट में बने। सेकेंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके अंदर क्या मैं एक्स्ट्रा फीचर डालूं सो दैट आई कैन चार्ज प्रीमियम प्राइस फ्रॉम माई कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग दिस लेक्चर्स, मैं कुछ कोर्सेज अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके साथ में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई और रिविजन लेक्चर्स या कुछ एक्स्ट्रा अगर कोई चीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, इफ आई एम प्रोवाइडिंग दैट एक्स्ट्रा फीचर और एक्स्ट्रा थिंग इनटू दैट कोर्स, obviously I can charge higher price because that become what, a premium product, right? जो भी एक्स्ट्रा चीज आप प्रोवाइड कर पा रहे हो एंड ऑब्वियसली अगर आप कॉस्ट कम रखे हो तो यू विल हैव अ गेन इनटू द मार्केट शेयर। एंड थर्ड इज अबाउट द फोकस। फोकस विल बी ऑन बोथ कॉस्ट लीडरशिप, कम से कम खर्च में वो प्रोडक्ट बने, एंड सेकेंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सो दैट यू विल बी एबल टू चार्ज व्हाट, प्रीमियम pricing. Also, this always is focusing on quality of earnings.
अर्निंग्स क्वालिटी, सर ये क्यों फोकस किया गया? फोकस इसीलिए किया गया बिकॉज द डेटा विच यू आर टेकिंग फॉर द वैल्यूएशन पर्पस, द डेटा विच यू आर टेकिंग फॉर द वैल्यूएशन पर्पस, यू आर टेकिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू आर टेकिंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? एनालिस्ट, ऑडिटर और मैनेजमेंट। Financial statement, who actually prepares? Obviously management. The management can play around into the financial statement. Management can play around into the financial statement. They can take all those assumptions change कर सकता है, right? Accounting policies change कर सकता है, basis on that your valuation can go for a toss. जो valuation है वो क्या आपका basically change हो सकता है या wrong हो सकता है basis on the financial report. For example, सर क्या क्या assumptions या क्या wrong या क्या एरर मैनेजमेंट कर सकता है इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्री मेच्योर ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्या प्री मेच्योर अर्ली रिकॉग्नाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल बिल एंड होल्ड पॉलिसी। बिल एंड होल्ड क्या किया कंपनी ने, मैनेजमेंट ने क्या किया, मेरे को मार्च में 31 मार्च में मैं गया मैनेजमेंट के पास या कंपनी के पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 शर्ट्स बाई करना था फ्रॉम से कंपनी ए ऑन 31 मार्च। I have gone to the management or to the company and I have placed an order of 100 shirts, but I want the delivery of those shirts say 38 अप्रैल को। 31 मार्च को गया मैं और 38 अप्रैल मतलब 1 month के बाद I wanted the delivery. What company has done, they have actually billed to me that 100 shirts. उसने क्या किया, बिलिंग कर दिया, बट अभी डिलीवरी नहीं किया। बिकॉज इफ यू रिमेंबर रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इफ व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड एक्चुअली कब ट्रांसफर होने वाला है? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 38 अप्रैल को होने वाला है, राइट? 31 मार्च को तो होगा नहीं बिकॉज द कंपनी इज नॉट इज गिविंग द डिलीवरी ऑन 31 मार्च। बट व्हाट कंपनी हैज डन, दे हैव एक्चुअली बिल एंड होल्ड कर लिया, मतलब इन्वेंट्री अभी भी उनके पास है, कंपनी के पास ही है, बट बिल कर लिया। और बिल जैसे किया समझ में आ गया होगा, रेवेन्यू आ गया बुक्स के अंदर में। रेवेन्यू आया इसका मतलब इनकम आ गया बुक्स के अंदर में। रेवेन्यू आया इसका मतलब इनकम भी आ गया बुक्स में। तो इनकम क्या हो गया, इन्फ्लेट। रेवेन्यू क्या हो गया, इन्फ्लेट। सो इट्स अ प्री मेच्योर रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू, राइट? सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड पॉलिसी। सेकेंड, यू आर एक्चुअली reclassifying the non-operating income as operating income. You are actually reclassifying or recognizing what non-operating income as operating income. Non-operating income क्या होगा, that is not your core business. That is not your core business. Core business मतलब क्या होगा, जो आप डे इन डे आउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे वाले एग्जाम्पल्स में जैसे वो जो मैनेजमेंट था, कंपनी ए का मैनेजमेंट जो शर्ट का डिलीवरी कर रहा था, उनका मेन बिजनेस था शर्ट्स बनाना और उसको सेल करना, बट दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू शेयर्स ऑल्सो। अब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से दे आर गेटिंग सम इनकम, but that is a core income or non-core? That is a core income or non-core for them? Obviously it's a non-core income because उनके बिजनेस से तो रिलेटेड है नहीं। तो उनका जो भी गेन या लॉस या जो भी इनकम आ रहा है, दे शुड रिकॉग्नाइज इन अदर इनकम, राइट? नॉन ऑपरेटिंग इनकम के फॉर्म में दिखाना चाहिए था, बट एक्चुअली व्हाट दे हैव शोन एज अ ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग रेवेन्यू शो करने से प्रॉब्लम क्या होगा, एक बार आप सोचो, जस्ट थिंक कि ऑपरेटिंग इनकम शो करने से प्रॉब्लम क्या होगा। सर प्रॉब्लम ये होगा कि एज द एनालिस्ट इफ वी आर टेकिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ दैट कंपनी एंड इफ वी आर एस्टिमेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द रेवेन्यू एंड ऑल, तो रेवेन्यू के अंदर में तो वो इनकम आ चुका, रेवेन्यू के अंदर में दैट नॉन ऑपरेटिंग इनकम हैज बिकम पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, बिकॉज ऑफ दैट रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड। और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ मतलब जो भी वैल्यूएशन होगा, जो भी एस्टिमेट होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली टेकिंग द एवरेज ऑफ से रेवेन्यू और बेसिस ऑन द इनकम, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। थर्ड विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। थर्ड विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जैसे रेवेन्यू के टर्म्स में अपने जब बात कर रहे थे, रेवेन्यू अपने प्री मेच्योर दिखा रहे, एक्सपेंसेस को, इनकम को ज्यादा दिखाने के लिए तुम एक्सपेंसेस क्या करेगा, ज्यादा दिखाएगा या लेट, मतलब जल्दी शो करेगा या लेट से शो करेगा? ऑब्वियसली लेट से शो करेगा। 31 मार्च को मेरे पास एक्सपेंसेस का बिल आया, मैंने क्या कर लिया, उसको ड्रॉवर में रख लिया। एक्सपेंसेस का बिल को मैंने क्या किया, ड्रॉवर के अंदर में रख लिया, एंड आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंस। प्रॉब्लम क्या होगा, इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली देयर इज अ डिले इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एक्सपेंस। नेक्स्ट विल बी showing or classifying the non-operating expense, operating expense as a non-operating expense. आपने क्या किया, जो ऑपरेटिंग खर्चा है, फॉर एग्जांपल रेंटल, मार्केटिंग, सैलरी, उसको क्या शो कर रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा के फॉर्म में शो कर रहे हो। सेम प्रॉब्लम होगा रेवेन्यू जैसा।
कि अगर अपने सर ऑपरेटिंग खर्चा को नॉन ऑपरेटिंग खर्चा की तरह शो करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग तो वन ऑफ आइटम हो सकता है कि इस ईयर में दैट एक्सपेंस इज देयर, नेक्स्ट ईयर में इट मे नॉट बी देयर। तो एज एन एनालिस्ट प्रॉब्लम क्या होगा एनालिस्ट के लिए, आपको वो एक्सपेंसेस को फोरकास्ट करने में एरर होगा, राइट। नेक्स्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी तो मैनेजमेंट आराम से प्ले अराउंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन मेथड, कभी SLM, कभी WDV, दे कैन प्ले अराउंड। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स, वेयर कंपनी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द एसेट एंड लायबिलिटी। कंपनी क्या कर दिया, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया एक थर्ड एंटिटी को, SPV को। देयर ऑल्सो दे कैन प्ले अराउंड विद द एसेट्स एंड द liability. Also, company can do or can treat the finance lease as operating lease, because finance lease में अपने क्या शो करते हैं, finance lease में asset and liability। अगर लेसी है जिसने एसेट लिया है वो क्या करेगा, एसेट भी शो करेगा और लाइबिलिटी भी शो करेगा। बिकॉज ऑफ दैट जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है, मतलब लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, इफ द कंपनी डज नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज द लाइबिलिटी, व्हाट दे कैन शो, दे कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज द ऑपरेटिंग लीज। अगर ऑपरेटिंग लीज के फॉर्म में शो कर रहा है तो सर वहां पे क्या आने वाला, ओनली एक्सपेंसेस विल कम। वेयर एज इन केस ऑफ फाइनेंस लीज एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों आएगा। सो ऑल दिस कैन बी व्हाट यू से बदमाशी चलेगा, जहां पे मैनेजमेंट क्या कर सकता है, ये सब क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है, राइट। सो बट देयर आर सर्टन negative or flag off items where actually it shows the negative impact on the earnings. There are certain items where there is a flag or negative impact on the earnings. Example दीजिए, example can be related party transactions। example can be related party transaction। related party transaction क्या हुआ कि through my uncle I am buying the raw material for the company। for example I actually I am into manufacturing of this shirts and I procure the raw material cotton। ठीक है, मैं कपड़ा लेता हूँ, कॉटन लेता हूँ फ्रॉम थ्रू माई अंकल और थ्रू सम ऑफ माई रिलेटिव। देयर एक्चुअली ही इज इन्फ्लेटिंग द इनवॉइस। 100 रुपीज का चीज ही शोइंग दैट 110 टू दिस कंपनी, और 10 रुपीज का जो बेनिफिट है वो मेरे को साइड से पास ऑन हो गया। बिकॉज अपने जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे, देयर शुड बी आर्म लेंथ प्राइस ट्रांजेक्शन, आर्म लेंथ में होना चाहिए, बट एक्चुअली थ्रू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैग ऑफ हो जाता है दैट एज अ एनालिस्ट और एज द ऑडिटर यू शुड हैव अ eyebrows raised on this related party transactions. Also, in case of a directors, if directors turnover is very high, डायरेक्टर का अगर टर्नओवर इज हाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आपने सुना होगा लास्ट मंथ में आया था बाइजूस में जो सीनियर मैनेजमेंट अपॉइंट हुआ था, ही वाज फ्रॉम वेदांता आई गेस, एंड ही लेफ्ट इन 6 months। he left in 6 months, so obviously there are eyebrows raised on बाइजूस। एक और एग्जांपल है, डेलॉइट ने एज अ ऑडिटर दे हैव लेफ्ट दी बाइजूस, राइट। तो अगर ऑडिटर छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को और देयर इज अ हाई टर्नओवर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑल, they are actually leaving the company, there are eyebrows raised or it poses it gives a negative signal for the company. Also, if the auditors are giving some other services apart from the audit, that is also not allowed कि ऑडिटर को सिर्फ ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, नॉट सम अदर कंसल्टेंसी, बिकॉज देयर कैन बी अ बायस इन दैट। कंसल्टेंसी के अंदर में और क्या बायसनेस आ सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अगर ये सब सारा चीज हो रहा है कंपनी में तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम और देयर इज अ नेगेटिव सिग्नल। ऑल्सो देयर कैन बी सम SEC फाइलिंग्स, जो आपने लेट SEC फाइलिंग्स वगैरह किया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, अगर आपने लेट किया तो दैट इज ऑल्सो अ व्हाट नेगेटिव इम्पैक्ट। इफ डायरेक्टर का जो सैलरी है दैट इज लिंक्ड विद द स्टॉक प्राइस, डायरेक्टर्स का सैलरी बोनस इज लिंक्ड विद द स्टॉक प्राइस, मतलब अगर स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा तो डायरेक्टर्स को बोनस या सैलरी मिलेगा। तो तुम समझ रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या बदमाशी करेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो चाहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा से अच्छा रिपोर्ट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा से अच्छा रिपोर्ट हो, सो दैट जो इन्वेस्टर्स है, जो मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव बना रहे एंड द प्राइस शैल गो इन द अप ट्रेंड, ताकि उनको बोनस सैलरी क्या आए, टाइम से आते रहे और अच्छा बड़ा अमाउंट आए। तो ऑल दिस इशू कैन बी देयर। ऑल्सो देयर कैन बी प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट टू मीट द डेट कोवेनेंट्स। रिमेंबर डेट कोवेनेंट्स लेवल 1 के अंदर में था, पॉजिटिव डेट कोवेनेंट्स, नेगेटिव डेट कोवेनेंट्स। कि कंपनी पॉजिटिव डेट कोवेनेंट्स होता था, इट यूज्ड टू बी मोर एडमिन काइंड ऑफ नेचर, वेयर द कंपनी हैज टू पे the principal and the interest on a timely basis and all, the management has to keep the collaterals। तो वो सब सारा चीज अपने वहां पे पढ़ते थे। तो अगर मैनेजमेंट के ऊपर में प्रेशर है कि डेट कोवेनेंट्स मैच करना है, फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो मैनेजमेंट कैन अगेन प्ले अराउंड इन द फाइनेंशियल्स टू मेंटेन दोस, राइट। तो वहां पे क्या होगा, ऑल दिस कैन बी अगेन अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द
कंपनी। तो यहाँ पे ये जो आपका LOS नंबर ई है लास्ट में, फाइनली ऑल द नेगेटिव सेंटिमेंट्स या नेगेटिव सिग्नल्स के साथ दे आर कंक्लूडिंग दिस LOS to describe the question that should be addressed in conducting industry and competitive analysis. अब एक काम करते हैं, because we have covered all the LOS, let's quickly first check the questions from this quasar, फिर अपने कोर का क्वेश्चंस करेंगे। Okay, this is module quiz 19.1. Susan Weber CFA has noted that even her best estimates of a stock's intrinsic value can differ significantly from the current market price. आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सबसे पहले सेकंड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स के अंदर में। इनफैक्ट द एंटायर CFA करिकुलम में जो सेकंड नेम होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही राइटअप में बार बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ जाता है। ऑब्वियसली यू कैन सी दिस क्वेश्चन इज लाइक L1 रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चंस are not exam representative, but yes, practice करने के लिए this question is fine because exam representative questions are there in your core. तो अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ लर्निंग ले रहे हैं। तो वेबर कोई he is a CFA has noted that even our best estimates of a stock intrinsic value can differ significantly from the current market price. एकदम सही बात बोल रहा है कि आप intrinsic value का जितना best estimate कर लो, it may differ from the current stock market price. The least likely explanation is differences between, बोला कौन सा explanation wrong है? Least likely means which one of this is wrong? कौन सा statement wrong है? Her estimate and the actual intrinsic value, एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू और उसका एस्टिमेट के बीच का डिफरेंस, इसको अपने क्या बोले थे? आप एक बार नोट्स में जाओ, ये मैंने चीज आपको नोट करवाया था, दैट 700 और 400 वाला एग्जांपल। प्लीज एक बार आप पहले उसको रिव्यू करो, 700 एंड 400 वाला एग्जांपल। हर एस्टिमेट एंड द एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज देखो वैल्यूएशन एरर लिखा है आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट एंड द इंट्रिंसिक एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू का डिफरेंस इज एक्चुअली नथिंग बट 100 रुपीज वाला, दैट वैल्यूएशन एरर। Actual intrinsic value and the market price, this is what? True valuation, true actual mispricing. This is actual mispricing. तो बोला the least likely explanation, कौन सा explanation wrong है? The intrinsic value and the going concern value. Option number C is what? Wrong. Option number A and B are the sources of the perceived mispricing. Question number 2. For a company for which the going concern assumption is not valid, going concern assumption valid नहीं है, the most appropriate valuation approach would be to calculate its residual income model value, dividend discount model value and liquidation value. यहाँ पे काफी easy question है, because residual income model value, dividend discount model value assumes what? The company is a going concern, whereas in case of liquidation value, that is the opposite to going concern, that does not assume that the company is a going concern. Question number 3. Jarvis CFA is performing an equity valuation as a part of the planning and execution phase of the portfolio management process. ठीक है, बोल रहा है ये जो Jarvis CFA he is actually performing the equity valuation as a part of planning and execution phase of the portfolio management, जो आज डिस्कस किया। His results will also be useful for communication with the analyst and the investors. और उसका जो एनालिसिस, उसका जो रिजल्ट्स है, कैन इट बी यूज्ड? यस, इट कैन बी यूज्ड। कैन इट बी यूज्ड फॉर टेक्निकल एनालिसिस? नो, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में अपने क्या करते हैं? वी सी दी पास्ट ट्रेंड, वैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं है। इन केस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस वी सी व्हाट? पास्ट ट्रेंड चार्ट्स एंड ऑल, तो उसका वैल्यूएशन से कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? बेंचमार्किंग के लिए, बेंचमार्किंग के लिए यूज नहीं करते अपने वैल्यूएशन, खासकर इन केस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। बेंचमार्किंग के लिए तो वी कैन यूज इन दी फीडबैक स्टेज, जहाँ पे वी वांट टू रिवॉर्ड दी पोर्टफोलियो मैनेजर हाउ ही हैज एक्चुअली परफॉर्म्ड, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कंपेयर टू सम इंडेक्स और उसका बेंचमार्क। बट इन केस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वी डू नॉट डू दी बेंचमार्किंग, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4. The 5 elements of the industry structure as outlined by Michael Porter include, कौन सा 5 forces होगा? Threat of substitutes, yes. Rivalry among the buyers, no. Rivalry among the existing firms था, it was not buyers. Option number C. Bargaining power of competitors, no, it was bargaining power of buyers and bargaining power of suppliers. तो ऑप्शन नंबर B और C wrong है, ऑप्शन नंबर A is correct. Question number 5.
Walder has been instructed to use absolute valuation models and not relative valuation model in his analysis. बोल रहा absolute valuation model he will not use the relative valuation. Which of the following is least likely to be an example of absolute valuation model? बोल रहा out of the three option which one is not a absolute valuation model? कौन सा absolute valuation model नहीं होगा? Dividend discount model, yes, it is a absolute valuation model. PE, market multiple model, this is a relative valuation model. Residual income model, it is a absolute valuation model. So which one of them is not a absolute valuation? Option number B. Question number 6. Jarvis CFA is performing an equity valuation and reviews his notes for key points he wanted to cover when planning the valuation. He finds the following questions. Basically, जो Jarvis है, he is performing an equity valuation and he has some notes. Okay, what he actually wants to cover. For that, he has some questions. First question is, does the company pay dividend? क्या company dividend pay करती है? Is earnings growth estimable? Whether earnings growth they can estimate. Does the company have significant intangible assets? This is nothing but the characteristics of the company. Last LUS में आप ये चीज देखना. Last LUS is talking about all this. What are the company characteristics? Which of the following general question is Jarvis trying to answer when planning this phase of the valuation? Option number A. Does the company fit the characteristics of the investment? Yes, option number A is correct because it's talking about the characteristics of the investment. Option number B. Is the model appropriate based on the availability of the input data? That is the second step. Third, can the model be improved to make it more suitable given the purpose of the analysis? So these are the three steps. But जो question के अंदर में दिया हुआ है कि ये वाला जो चीज है, this questions where it is covered. So this is covered in the characteristics of the investments. Use the following information to answer question number 7 to 8. Question number 7 और 8 अपने को आंसर करना है. So we have two paragraph here. Sun Pharma is a large pharmaceutical company based in Sri Lanka. आराम से पढ़ते हैं. Sun Pharma क्या है? Large है. Pharmaceutical company है. Okay. They are based in what? Sri Lanka. That manufactures prescription drugs under license from large multinational pharmaceutical. Story clear होगा. They are large pharmaceutical company and they are basically manufacture what? Drugs. Mahamurthy, CEO of Sun Pharma, is evaluating a potential acquisition of Island Cookware, a small manufacturing company that produces cooking utensils. तो ये जो महामूर्ति है, he is the CEO of the Sun Pharma and he is actually evaluating. He has not bought the Island Cookware, but he is actually evaluating whether to buy that company. And उनका business क्या है? They are into utensils, cookware का. Okay, so there are two companies, Sun Pharma and Island Cookware. Mahamurthy feels that Sun Pharma's excellent distribution network could add value to Island Cookware. बोला जो Sun Pharma का distribution network है, this can benefit the Island Cookware also. Basically, they want to find out some synergies and all. Sun Pharma plans to acquire Island Cookware for cash. So it's not a stock deal, it's a cash deal. Several days later, Sun Pharma announces that they have acquired Island Cookware at the market price. बोल रहा है कुछ दिन के बाद न्यूज आ गया that Sun Pharma is actually what acquired the Island Cookware at the market price. Question number 7. Sun Pharma's most appropriate valuation for the Island Cookware is its sum of parts valuation, investment value, liquidation value. बोल रहा Sun Pharma जो Island Cookware को acquire करेगा उसको किस वैल्यू पे वो करेगा, वैल्यू करेगा. ऑब्वियसली इट विल बी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बिकॉज एक्विजिशन कर रहा है ना. इन्वेस्टमेंट वैल्यू में आपको बताया था कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव. दे नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर नीड्स, परसीव्ड सिनर्जीज, व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशंस. उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज गेटिंग व्हाट डिटरमिन्ड. सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दी सन फार्मा का कोई अपने अलग अलग सेगमेंट का वैल्यूएशन तो कर नहीं रहे. वी आर डूइंग द वैल्यूएशन ऑफ सम अदर कंपनी, दैट इज व्हाट कुकवेयर. तो सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू होगा नहीं. लिक्विडेशन वैल्यू क्यों रॉन्ग है? लिक्विडेशन वैल्यू क्या एज्यूम करता है? दैट द कंपनी इज प्लानिंग टू लिक्विडेट, बट हियर देयर इज नो डिस्कशन अबाउट लिक्विडेशन. कोई लिक्विडेशन का तो बात हुआ ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. अपॉन अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर द मार्केट प्राइस ऑफ सन फार्मा ड्रॉप्स. बुरा मर्जर का जैसे अनाउंसमेंट आया या न्यूज आया, सन फार्मा का जो प्राइस है वो क्या हो गया? ड्रॉप हो गया. दिस इज मोस्ट लाइकली अ रिजल्ट ऑफ अनरिलेटेड बिजनेस इफेक्ट, टैक्स इफेक्ट, कॉन्ग्लोमेरेट डिस्काउंट.
बोले जो सन फार्मा जो है आईटीसी का एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर 10,000 11,000 सीआर वाला, तो दिस drop in the price of the Sun Pharma is a result of what? Conglomerate discount, because they are entering into some other business. ऑप्शन नंबर बी टैक्स इफेक्ट को लेके कुछ डिस्कशन नहीं किया हुआ यहाँ पे. ऑप्शन नंबर ए अनरिलेटेड बिजनेस इफेक्ट क्यों रॉन्ग है? बिकॉज इट्स नॉट, द क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइंग और द ऑथर इज नॉट स्पेसिफाइंग व्हाट डू वी मीन बाय अनरिलेटेड बिजनेस. अनरिलेटेड बिजनेस का मतलब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया हुआ है. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा. विल गिव प्रायोरिटी टू द conglomerate discount, because if you are entering into some other unrelated industries, obviously the investors are seeing that you are taking different risk, you have a different product line. That is why they do not want to reward you, they actually want to discount your entire valuation, right? तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. ऑब्वियसली इसका एप्लीकेशन जो होगा अपने नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर में देखेंगे. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कोर क्वेश्चंस. जो चैप्टर इन क्वेश्चंस है वो अपने दैट क्वेश्चंस आर एक्चुअली मोर एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव. लेट्स सॉल्व दो सम्स, बट बिफोर दैट फर्स्ट यू शुड इंश्योर दैट थॉरली आप ये चैप्टर रिवाइज कर लो, सो दैट जिस दिन अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस का क्लासेस कर रहे हो यू विल बी एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू गाइस.